So good morning to all of you. Uh, from today's onward, we will start the actual topics. Okay. In the earlier lecture, we have discussed in detail about the units, first unit, second unit, third units, and its content also. By giving the proper examples, I explain all these things. From today, I will start the physical chemistry. In that physical chemistry, I will start the first, that is 1.1. That is the opposing, consecutive, and the parallel reactions. In that, no derivation is required, only examples are expected from the university syllabus point of view. So, let's start the screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, start chemistry second, unit first, in that chemical kinetics second, and the solution. In that we are going to start the chemical kinetics second. Okay. In the chemical kinetics, first point is the type of the reactions. In the type of the reactions, what we imagine is that when we ask the questions that what are the different types of the reaction, at that times, first things come in our mind that there are the addition reactions, substitution reactions, elimination reactions are the types of the reactions. Okay, but some other reactions are also there. Okay, which are they? They are the different types of four types of reactions. In that we are specifically focusing on the parallel reactions and the series reactions. Okay, series reaction, parallel reaction means what? In the parallel reactions, here's the example is given, that is A converted into the B at the same time, but in the second step, A converted to the C. Means this is the parallel types of the reactions. Parallel reactions where the reactant is consumed by two different reactions. Reactant consumed by two different reactions pathway to form the different product. Two different products are formed. Means the B and C are the two different products formed by the parallel reaction. Reactant is the same, but the products are the difference. Means parallel reactions, but we will get the different products. Example is the oxidation of the ethylene to ethylene oxides. Next is the series reactions. It is also called as the consecutive reactions. Okay, means the A convert into the B, and then B convert into the C in the two-step reactions. Okay, these types of reaction are the consecutive reaction. In that reactions, the rate of the reactions in the first step when A convert into the B, that is the first rate of the reaction, that is K1. When B is converting to the C, at that time second rate of the reaction, that is K2. Okay, so these types of one type of reaction is also there, that is reversible reactions. What happens in the reversible reactions? In the reversible reaction, when A converted into the B, forward reaction, at the same time B converted into the A, that is the backward reactions. Means the K1 is the rate of the forward reactions and K minus 1 is the rate of the backward reaction. So series of reaction, consecutive reactions, in that examples is given here, that is the with the ammonia, that is NH3, to form the mono, di and tri enol amines. Okay, these are the
We have some idea about the types of the reactions. We have different types of reaction also. Okay, combination reaction is there, decomposition reaction is there, combustion reaction is there, neutralization reaction is there, displacement reaction is there. These reactions are the simple one reactions. Maximum time this concept we use in the organic chemistry. Definitely, when one reaction is converting, means reaction is proceeding, means it will be follow one of the types. डेफिनेटली इट विल फॉलो फ्रॉम द वन ऑफ द टाइप्स. एक तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, डिकम्पोजिशन हो सकती है, कंबशन हो सकती है. इसमें से वो कौन से भी टाइप की रिएक्शन हो सकती पॉसिबिलिटी है. ओके, सिंपल अगर समझना है हमको तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? ए एक रिएक्टेंट है, बी एक रिएक्टेंट है, दोनों कंबाइन हो गए तो क्या हो गए? कंबाइन है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यानी यहाँ पर कोई बाहर नहीं निकल रहा है, कोई एलिमिनेशन प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पर. दूसरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, मीन्स द ए और बी है. ओके, इनका ब्रेक डाउन हो रहा है, ए अलग बन रहा है, बी अलग बन रहा है. ओके, सी अब यहाँ पे देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या बनेगा? Na अलग, Cl माइनस अलग, यानी Na प्लस Cl माइनस. डिकम्पोजिशन. कंबशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? इनमें क्या हो रहा है? इसमें कंबशन रिएक्शन क्या था? CO2 फॉर्म हो रहा है अलॉन्ग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? न्यूट्रलाइज एसिड और बेस दिया गया है, दोनों की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुए, सॉल्ट तैयार हुआ. जब भी सॉल्ट तैयार होता है तो हम क्या बोलते हैं? एसिड बेस की रिएक्शन होती है. एसिड बेस की रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट तैयार होता है, तो एट दैट टाइम वी कॉल इट एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलेंगे? डिस्प्लेस करना, यानी वन एटम, दो ग्रुप दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो ग्रुप है, देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये दो क्या दिए वाले? कंपाउंड दिए वाले. तो जब इनकी रिएक्शन होंगी तो डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा? यहाँ का मेटल दूसरे मेटल की जगह पे डिस्प्लेस हो रहा है, दूसरी जगह का मेटल पहली जगह पे डिस्प्लेस हो रहा है. मीन्स द एक्सचेंज हो रहा है मेटल्स का. मीन्स यहाँ पर जो है AgNO3 था, प्रोडक्ट क्या बन गया? AgCl. NaNO3 NaCl था तो क्या बन गया? NaNO3. मीन्स डिस्प्लेसमेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन. तो ये टाइप्स है अलग अलग. एक पैरेलल रिएक्शन, सीरीज ऑफ रिएक्शन, consecutive reactions. Okay, reversible reactions is also one of the type of the reactions. और ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, ये भी इसको भी हम जो है टाइप ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं. और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ द रिएक्शन है, लेकिन हमको फोकस किस पे करना है? हमको फोकस करना है स्पेशली हमारे जो है रिवर्सिबल और द अपोजिंग टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस. अब रिवर्सिबल और अपोजिंग किसको बोलेंगे? रिवर्सिबल अपोजिंग किसको बोलेंगे? जब एक कोई रिएक्टेंट है, उसका कन्वर्जन बी में हो रहा है, यानी प्रोडक्ट तैयार हो गया, ए का कन्वर्जन बी में हो गया, बी वापस से कन्वर्ट होके ए में आ रहा है, ए का कन्वर्जन बी में, बी वापस से कन्वर्ट होके ए में आ रहा है, मीन्स रिवर्सिबल टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस. इसको अपोजिंग टाइप ऑफ द रिएक्शन भी हम बोलेंगे. जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, देखिए ए है, ए का कन्वर्जन किस में हो रहा है? बी में हो रहा है. ओके, ए कन्वर्ट इनटू द बी, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और एक के डैश जो है ये बैकवर्ड रिएक्शन है. ओके, इन बिटवीन अगर जो नेटवर्क गया, इन बिटवीन अगर जो आपको मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है, या फिर इन बिटवीन वीडियो विजिबल नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि साइलेंट है एकदम, कुछ सुने नहीं दे रहा है, तो ऐसा समझिएगा उस टाइम में लेफ्ट हुआ है, जंप हुआ है. तो उस टाइम में मुझे एक मैसेज डाला करो आप, ओके, अपने ग्रुप पर कि सर आप लेफ्ट हो गए, तो फिर मैं वापस से ज्वाइन, मुझे समझ में आएगा. ओके, तो अभी अपोजिंग रिएक्शंस और रिवर्सिबल रिएक्शंस. यहाँ पे ए का कन्वर्जन बी में हो रहा है, के इज द फॉरवर्ड रिएक्शन, के डैश इज द बैकवर्ड रिएक्शन, ओके, रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. अब क्या हो रहा है देखिए, समव्हाट मोर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस इज, हेलो बोलिए, somewhat more complicated reaction is when forward is the first order type and the reversible reaction is second order type. ऐसा भी होता है कभी कभी. कभी क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर रहती है, बैकवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर रहती है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होती है, बैकवर्ड रिएक्शन जो है सेकंड ऑर्डर टाइप ऑफ रिएक्शन होती है. तो एग्जांपल्स उसके अलग अलग
जैसे एग्जांपल रहेंगे वो हिसाब से उसका हम जो है बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अभी देखिए इक्विलिब्रियम की बात चलती है। अब ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। इक्विलिब्रियम मेंटेन मीन्स जितना प्रोडक्ट रहेगा उतने ही क्वांटिटी में रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, कंटिन्यूअसली कन्वर्जन चलता रहता है। ये इक्विलिब्रियम में स्टेप में है। तो reversible reaction do not go to the completions. Okay, they occur in either directions. Okay, chemical equilibrium exists when the two opposing reactions occur simultaneously at the same rate. The chemical equilibrium is a reversible reactions that the forward reaction rate is equal to the reversible reaction rate. Chemical equilibrium are the dynamic equilibrium. Molecules are continuously reacting even though the overall composition of the reaction mixture do not change. ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस के क्या है कंडीशंस है। उसके बाद है नेक्स्ट वाली कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। अभी कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन किसको बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव स्टेट में हमने इससे पहले भी देखा है। ओके, कॉन्जिक्यूटिव यानी कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होते जाना स्टेप बाय स्टेप, मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन को हम कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा फिर, ए कन्वर्ट इनटू द बी, रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज A1 K1, then B convert into the C, rate of reaction is the K2, K1 and K2 are the different, K1 K2 डिफरेंट रहेंगे। ओके, और दूसरी बात कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन अगर जो आपको बताना है तो क्या होना चाहिए, K2 का रेट जो है हमेशा K1 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, जैसा ही B में कन्वर्ट हुआ B का कन्वर्ट फास्टली C में होना चाहिए। A से B बना तो B से फास्ट कन्वर्ट होकर C बनना चाहिए। दैट इज K2 का रेट ऑफ द रिएक्शन K1 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाकर क्या होंगे रिएक्शन कॉन्जिक्यूटिव स्टेप में जाएंगे। वरना क्या हो सकता है, B का कन्वर्जन वापस से A में हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन टाइप शो करेंगे। मिनिमम क्वांटिटी में C फॉर्म होगा, मैक्सिमम क्वांटिटी में वापस से A फॉर्म हो रहा है, तो रिवर्सिबल कैटेगरी में जाने के चांसेस। इसलिए रेट ऑफ द K2 इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ द K1 होना चाहिए। ओके, देखिए फिर उसके साथ कैसा एक्सप्लेन करेंगे हम कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन को। सिंपलेस्ट इज वन वेयर द बोथ द रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर, दोनों भी कैसे रहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रहेंगे। इफ K2 ग्रेटर देन K1 then B can be considered as the unstable intermediate and the rate determining step for overall reaction will be the conversion of A to B. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी रहेंगी फिर, B अगर जो अनस्टेबल है, अनस्टेबल मीन्स फास्टली कन्वर्ट होता है C में, तो उसको हम अनस्टेबल बोलते हैं। तो ऐसे में इसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन के अंदर B अनस्टेबल है, B का कन्वर्जन फास्टली C में होता है, तो ऐसे केस के अंदर हम जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेंगी वो किसको बोलेंगे, A का कन्वर्जन B में जो हो रहा है उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। ये डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन का रेट क्या रहेगा। जितना ज़्यादा A का कन्वर्जन B में होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्शन का रेट रहेगा। ओके, एग्जांपल में हम देख सकते हैं यहाँ पर रेडियो एक्टिव सीरीज, आइसोटोपिक डिके। ओके, ये अलग अलग एग्जांपल्स है। उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन डायजेपिन बाय हाइड्रोलाइसिस टू लैक्टम फॉर्म एंड फर्दर टू बेंजोफेनॉल्स, ये भी एक एग्जांपल रहेगा कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन का। ओके, तो आज हमने इतने पॉइंट पढ़े हैं। ओके, रिमेनिंग पॉइंट्स को जो है हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे।